Good evening, everyone. On behalf of entire PHF family, myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur, I warmly welcome each one of you to session number 157 of our special webinar series, Guruji Ke Saath Guruvar 2.0. This inspiring journey began on 10th April 2025 under the visionary mentorship of our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir, with the mission of spreading quality homeopathic knowledge and transforming clinical practice through continuous learning. Today, we are also delighted to continue another meaningful series within this platform, What Women Want. Through this series, we strive to understand and explore a woman's heart, emotions, and inner needs, enabling us to heal her with great empathy, insight, and understanding. It is now my great honor and privilege to introduce and welcome our esteemed speaker, none other than Dr. Liaquat Namole sir. So here is a little introduction about Liaquat sir. Dr. Liaquat Namole sir is one of the most eminent and passionate homeopaths from Nashik, Maharashtra, with over 31 years of dedicated clinical and teaching experience. Throughout his remarkable journey, he has conducted more than 300 seminars and over 250 webinars, inspiring thousands of homeopathic practitioners across the country. He has also led numerous national level seminars on important clinical topics, including diabetes, cancer, infertility, skin disorders, and pediatrics. Driven by a vision to strengthen homeopathy, his mission is to transform 10,000 general practitioners into homeopathic practitioners. So far, he has successfully inspired more than 2,000 GPs to integrate homeopathy into their clinical practice. Dr. Liaquat sir is the founder and guiding force behind Ignited Minds by PHF, a thriving learning community where over 2,500 doctors engage in continuous academic discussions and daily learning. He is also the creator of the unique MML, that is Mind Method by Dr. Liaquat, an innovative approach that emphasizes understanding the patient's mind as the key to successful homeopathic prescribing. At the heart of the at the heart of this method lies one powerful principle: empathy is the mantra. Widely regarded as the master of gestures, Dr. Liaquat sir pioneered the concept of incorporating gestures into homeopathic case taking. Through his exceptional powers of observation and vast clinical experience, he has identified numerous original gestures that have made a significant contribution to the science and practice of homeopathy. Adding to his achievements, he is the author of best-selling book Humanopathy with over 20,000 copies sold. He is currently working on the much-awaited second edition of this landmark publication. With immense respect and gratitude, let us warmly welcome our beloved mentor and guide, Dr. Liaquat Namole sir. Welcome, sir. Over to you. Mute आहे, sir. Thank you, Mansi. Thank you so much for the introduction. Every time I laugh at the introduction the people give me. Anyways, thank you very much. I feel flattered. That's every first Thursday of every month. I feel so flattered to hear this thing. It's nice. Yeah, let's get serious, guys. Let's talk business. है ना? So it's it's called session number what? This is what is the session number, Mansi? 157. Wow, 157. Oh my God. मतलब 57 second series का हो गया अपना माशाल्लाह. So we have crossed. हाँ माशाल्लाह जल्दी आ जाएगा मतलब the end is coming closer for this series also. Fine, we are ready with another topic also, guys. Don't worry. So this shall continue hopefully. If you all come and watch our videos and send the feedbacks on the comment on YouTube and send the feedbacks there. Of course, I do get a lot of personal messages. So I request everybody to
thank you for sending me the messages personally. I would really love though if you'll comment on YouTube after watching whatever it is like, whether you like it, whether you don't like it, whether you have some queries, anything you write it there. I'll cover up your queries in the next lecture, or I'll make a short video. Actually, make videos answering your queries. Somebody had asked me some question last time, so I'm going to answer. I'm going to make a small video on that. I do remember the query. Okay, now coming back today, topic is what women want. WWW. That is continue still. Still it will continue for some. I hopefully some 10-15 lectures because it's the most difficult thing to understand. Anybody's hard for that matter. Even women, like women, even men, kids, and teenagers, and things like. So we shall try and cover all possible topics. Okay, I have beautiful cases. One case is of a girl, little related to me. She's now 27. Okay. She has backache and PCOD and a lot of things. She has obesity. Uh, she Her husband doesn't take care of her much, though she's married to a very well-known family, rich family, but the husband doesn't support her much. This girl is doing the tailoring work and she's earning 15, 20 odd thousand per month and she's only paying, and taking care of the kids also. Husband is not supporting her at all. One. Second thing is the parents of her, the in-laws also made them separate. उनको निकाल दिया घर से अलग, उनको मेरी बच्ची को ही रेंट वगैरह देना पड़ता है, तो मायके से इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. रीजन इज दिस गर्ल वाज अडॉप्टेड बाय हर अंकल. ओके, हर पैटर्नल अंकल, मतलब उसके चाचा ने इसको अडॉप्ट किया था, उसको उस वक्त बच्चा नहीं होता था. ठीक है, बाद में क्या हो गया, जब ये लड़की 12 साल की हो गई, 12-13 साल की, तो उसके चाचा को लड़की हो गई. At very late, her aunt, okay, her aunt must be like 42 something जब उनको बच्चा हुआ. Okay, तो naturally, है ना, धीरे वो गैप कम हो जाता है अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए. ऐसा इसने मुझे बताया. ठीक है, कि तो इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं. उनकी जो असली बेटी है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. दिस इज व्हाट इज हर से. वन केस. सेकेंड केस, सबका रेमेडी एक ही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अलग अलग है. एक एक लेडी है, शी इज लाइक 38, है ना. तो उनका ये है इशू कि शी हैज सम uterine complaints and fibroid and what else she has, again low backache. Low backache तो है. She has calcaneal spur also. Okay, heel pain is also there. Okay, headaches बहुत ज्यादा है उसको. Thyroid is borderline. So subclinical hypothyroidism is what is the diagnosis. Okay. So then I asked her, कैसा है लाइफ में, फैमिली में. सब कुछ नहीं सर. तो आई थॉट, उसने बोला कुछ नहीं, मैं, हमारा सवाल होता है घर पे कौन कौन है. सब है. सब का मतलब मेरे हमारी जॉइंट फैमिली है. ओके, कौन कौन है, तो है, तो देवर है, देवरानियां है, बच्चे हैं, सास ससुर है. फैमिली में हमें क्या, घर किसके हाथ में है. तो लेकिन पहले मेरा था डॉक्टर साहब, पहले मेरे को बहुत ज्यादा ये था. मैंने दोनों देवर को बड़ा करी, उनकी शादियां की. अब लेकिन लड़की आ जाती है घर में पढ़ाई, तो फिर प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं. तो मैं क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हो, बिकॉज it will help me, I said. So then she told the fact of her heart. I said, you tell me your perspective. Okay. So her husband was also there. So she was a little hesitant. I said, tell me, doesn't matter. तो husband मुझे बोल दे, क्या है तेरे मन में, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन इनको लगता है. मैं क्या, जो भी है बताइए. तो देन शी सेड कि अब मेरी दिरानी है,
वो मेरी सासू माँ की रिश्तेदार है, पैसे वाली है और पढ़ी लिखी है, फार्मासिस्ट है वो लड़की। तो फिर चलती घर में, उस पर सासू माँ ज्यादा मेहरबान रहती है। मेरी छोटी छोटी बातों में भी अभी गलतियां निकालने लगी है। पहले ये था कि मेरा देवर मेरी बातें सुनते थे, अब कुछ भी बोल देते हैं। और फिर देवरानी भी, छोटी देवरानी भी अभी उसी के साइड से है, ताकि क्योंकि अभी ये मेरी सासू माँ की भान भतीजी, लाइक कजिन भाई की बेटी ही है इनकी देवरानी की, है ना। तो फिर छोटी वाली भी उसकी तरफ ही है, हो गई है। ये भी मेरा क्या, ये भी उनकी ज्यादा सुनते हैं। तो हस्बैंड बोले देखो ये ऐसा बोलती है। अब मेरा ससुर जी तो पहले से सास के ताबे में, उनका कुछ नहीं। हमारी सासू माँ ही दिखती है, और उसके बाद में मैं देखा करती थी बहुत ज्यादा सासू माँ को। अब लेकिन सासू माँ का झुकाव उधर ज्यादा है। उसको कुछ भी कहा तो मायके जा सकती है, आराम कर सकती है। मुझे अब तक एक बार भी मुझे मायके जाने को मिला डॉक्टर साहब, मैंने कभी जिंदगी में आराम नहीं किया। जो भी था इसी को अपना घर समझ कर ही नहीं रही। बीमार भी पड़ी किसी थी, ये सोचती थी कि मेरी सासू है, मेरी माँ जैसी है, मेरे ससुर जी है। तो मैं कभी नहीं गई। ये महारानी तो छोटा नहीं, छोटा तो चली जाती है उधर, यहाँ पे आराम करती पड़ी रहती है, मुझे उसकी सेवा करना पड़ता है। This is the thing. Third case is of second infertility. That lady had two daughters. Second infertility, as in they wanted another child and they wanted a male child. Okay, so they were taking some Ayurvedic treatment also, and the Ayurvedic physician, the doctor is my friend actually. तो ही हैज रेफर्ड दिस टू मी। उसने बोला लियाकत यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं वो बाकी की प्रोसीजर देखता हूँ जो भी वो करते हैं मेरी चाइल्ड वगैरह के लिए, बाकी का तू देख ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो देन शी केम टू मी एंड आई आस्क्ड कि क्या है फैमिली में कौन कौन, ये फिर वही है। है, सब लोग हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है। दिस थर्ड गर्ल इज फ्रॉम मराठा फैमिली, पाटिल्स होते हुए वो, अच्छे हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं। तो मैंने बोलो बेटा क्या है, कुछ नहीं सब, मुझे दो बेटियां हैं और देवरानी को लड़का होगा, तो वो लाडली होगी सबकी, ससुर से लेकर तो सबको सबकी लाडली होगी। तो कुछ भी बोल देती है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है। सासू माँ भी उसकी साइड लेती है, ससुर जी भी उसकी साइड लेती है। इनके खानदान को चिराग जो मिल गया, अब मेरी वैल्यू खत्म हो गई आपसे, मेरे को कोई पूछता नहीं। ये तीनों केसेस है, तीनों में एक कॉमन धागा आपको मिलेगा। और एक बहुत प्यारी रेमेडी है जो हम लोग पहले बहुत इस्तेमाल किया करते थे कॉलेज डेज में, लाइक इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस। आजकल थोड़ा सा कम करते हैं लोग, हम लोग तो माशाल्लाह बहुत खुश करते हैं। तो दिस इज द थिंग, तो आप लोग अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हैं, या तो फिर मैं समझा दूंगा। यस, आई डोंट गो स्लो, मैं थोड़ा सा स्पीड में जाता हूँ। यस प्लीज, बोलिए। हेलो, आर यू देयर गाइस? एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ जी बोलिए। एक सेकंड दीजिए, दिस लेडी शाउटिंग। Yes, yes, please. Can you hear me, guys? Am I audible? You all can discuss. Yeah, 4 second feeling. Sumita is feeling okay. पूरा एनालिसिस बताए, एक एक रुब्रिक्स मत बताओ, ठीक है? Anybody wants to really contribute? Okay, motivation, indignation. अरुणा गाड़ेकर स्टेप से गया। Okay, who else? Who else? तीनों को आप समझिए, तीनों में कुछ चीज मिलेगी आपको, ठीक है? अनम्यूट करके बात कीजिए ना, अनम्यूट कर सकते हैं मानसी, दे कैन अनम्यूट एंड स्पीक, कैन दे? Yes. Yes. या, so you can unmute and speak to me, guys.
What else? और कुछ? हेलो, या और कोई मॉडिफिकेशन है या आवाज सही आ रही मेरी? जी सर बोलिए। हाँ, जेलिसी जेलिसी है सर जेलसी, कि नैन्सी। इसको है मुझे नहीं, तो वो जो एक फीलिंग आता है जेलिसी कि शी हैज एंड आई डोंट गेट इट, सो कैन वी टेक जेलिसी? ओके, श्योर। जेलसी में यू विश बैड ऑफ द अदर्स ना बेटा, यहाँ पर है ऐसा कुछ? नहीं, नहीं। ओके। एनवी बोल सकते हैं या कुछ और ना? शी इज फीलिंग बीइंग कंपेयर्ड एंड व्हाट एल्स? वैल्यू नहीं है उसकी, ऐसा। हिंदी में बोलो, आप रुब्रिक्स मत बनाओ, पहले समझो फिर नेग्लेक्टेड मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना है। नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड। उसकी जगह ले ली गई उधर से। निग्लेक्टेड है, उसकी जगह ले ली गई है, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो लॉस ऑफ पोजीशन आ सकता है ना? या निग्लेक्टेड, ओके, श्योर। थोड़ा निग्लेक्ट से भी थोड़ा ज्यादा ना, निग्लेक्ट तो छोटी चीज होती है ना, मेरी सर तरफ रिजेक्शन, देखो। हाँ, रिजेक्शन, एलिमेंट फ्रॉम रिजेक्शन। रिजेक्शन नहीं कह सकते हैं, रिजेक्शन के थोड़ा करीब है। और फोर सेकंड फीलिंग है भाई। वो सेकंड नहीं है ना, हस्बैंड है ना साथ में। अब पहली वाली को है, वो जो इनफर्टिलिटी पहली जो बच्ची थी उसको फोर सेकंड बोल सकते हैं अपन। या Strange ले सकते हैं क्या बेटा? सर, estranged from the family. एस्ट्रेंज सोच सकते हैं, वी कैन थिंक अबाउट एस्ट्रेंज, बट एस्ट्रेंज मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय एस्ट्रेंज? She's neglected by the family in all the three cases. She feels that. एस्ट्रेंज बाय फैमिली फोर सेकंड, ओके, ओके। और और Worthlessness ले सकते हैं सर। क्या बेटा? Worthlessness. वर्थलेस, उसको वर्थलेस फील हो रहा है कि नहीं? उसको तो उसकी वर्थ है ना, Okay. समझ रहे हो? आप समझ रहे हो, हर जगह पे अगर आप देखोगे तो उसकी वर्थ क्या हुई अभी, कम हो गई है, समझ रहे हो? हेलो, जी सर, जी सर। आर यू गेटिंग मी? किसी नए के आने से उनकी जो वैल्यू थी सराउंडिंग में वो कम हो गई है, ये ऐसा है, लग रहा है ये कि वन मतलब लाइन से। में, ये इसका वन लाइन एनालिसिस है, तीनों केसेस। वैल्यू कम हो गई सर, रिड्यूस वैल्यू, हाँ, वैल्यू कम हो गई या वैल्यू ही नहीं दी जा रही है क्या? वैल्यू लेस हो गई। नहीं, वैल्यू नहीं वैल्यू दे लेस रही, मतलब लेस वैल्यू हो जाती ब्रो। बिल्कुल वैल्यू नहीं वर्थ दे लेस रही। मतलब वर्थ होता है लेकिन लेस होता है, वैल्यू लेस के अंदर सर लेस होती है। सर आगे आउटकास्टेड कर दी गई है। आउटकास्ट डिवैल्यूएटेड, क्लोज, डिवैल्यूएटेड, बट क्योंकि आउटकास्ट कैसे डिवैल्यूएटेड। होगा बेटा? एक सेकंड रुको ना, मैं आप ओवरलैप कर रहे हो। जी सर, क्योंकि सर आउटकास्ट कैसे नेगलेक्ट से, होगा? हाँ, सर नेगलेक्ट से ऊपर का रूम रेट है ना, फैमिली ने आउटकास्ट कर दिया इनको। आउटकास्ट नहीं है बेटा अभी तक तो, मतलब एकदम आउटकास्ट मतलब तो तुमको, जैसे अभी देखो, पहले दलित्स को अपने हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर थे नहीं क्या, आउटकास्ट जी मतलब सर। टोटली, जैसे आजकल मुस्लिम्स को करते हैं आउटकास्ट वाला, है ना? तो वो जी वाला सर। नहीं ना बेटा ये, या उधर निग्रोज को होता था आउटकास्ट, तो वो नहीं है ना। जी सर। आउटकास्ट का थोड़ा सा करीब है, यू वेरी क्लोज टू आउटकास्ट, यू वेरी क्लोज। और हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल रहे थे? इनडिफरेंस है हिटलेस। आपकी आवाज थोड़ी ना, आपका माइक थोड़ा दूर पकड़ी है या क्या है, पता नहीं। आप हेडफोन से बात कर रहे थे? हेडलेस, हेडलेस। हेडलेस, हेडलेस कैसे होगा बेटा? हेडलेस कैसे होगा?
नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपको, क्या बोलना चाहते हैं? अनिल अनिल बोल रहे हैं क्या? जी सर, जी सर। क्या बेटा, क्या बोलना चाहते हैं आप एग्जैक्टली? जैसे उसको सी बिकेम्स हिटलेस, मतलब उसको छुप जा रही है, उसके उसका जो हेड है, जिसका जो उसकी जो ईगो है या उसका जो कॉन्शियस है, उसको डाउन हो रही है वो। सी फेल डाउन। हाँ, हेडलेस तो नहीं होगा ना उसकी, उसको नीचे, उसकी देखो पोजीशन उसकी जो थी वो पोजीशन वही लास्ट है। लास्ट लास्ट ऑफ पोजीशन, एलिमेंट्स फ्रॉम लास्ट ऑफ पोजीशन। आप पूरा एनालाइज करो केस को, आप रूब्रिक टटोल रहे हो, मेरी बात समझिए, मैं आपको सबको समझाता हूँ। पूरी पूरी केस को लेकर के फिर उसका अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो रूब्रिक्स फिर अपन उसके लिए यूटिलाइज ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले एनालाइज करो उसको, देन इट विल बिकम वेरी इजी, वेरी वेरी इजी इतना चलिए। जैसे किसने कहा था वो कि किसी के आने से इसकी वैल्यू कम हो गई है, और उसके साथ में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विथ हर। जो आउटकास्ट के करीब कौन सा रूब्रिक आता है, और कौन सा इंग्लिश वर्ड आता है आउटकास्ट के करीब? किसने बोला था आउटकास्ट? So left out. लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट ही लगे फोर्थ सेकंड ना बेटा। लेफ्ट आउट भी है, आउटकास्ट भी है, क्लोज। और किसने बोला था आउटकास्ट? हु हैड सेड आउटकास्ट? सर मैंने बोला था डॉक्टर बालकृष्ण त्यागी। डॉक्टर बालकृष्ण त्यागी। बालकृष्ण त्यागी। अच्छा, आपका नाम वन प्लस लिखा हुआ है। ओके, इतना प्यारा नाम है बालकृष्ण त्यागी, वन प्लस को हटाओ। ठीक है। हाँ, कम ऑन, बी प्राउड ऑफ योर नेम ब्रो, कम ऑन। ओके। ओके बालकृष्ण, वो थोड़ा सा उसके करीब जाओ आउटकास्ट के, और वैल्यू कम, वैल्यू कम, आउटकास्ट वगैरह इनको सबको मिला के और क्या चीज आती है? सर रिकॉग्निशन लास्ट हुई। आप अंग्रेजी में मत बोलो डॉक्टर साहब, हिंदी में बोलो। अंग्रेजी में सभी लोग केजी फेल है हम लोग, जी सर। तो अंग्रेजी के वर्ड्स को है ना मत करो नहीं सर। इस्तेमाल। हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलो। और वो शुद्ध हिंदी वर्ड को आप गूगल बाबा को बोलो। है अभी जगत गुरु, अभी सब जगत गुरु की दुकान बंद हो चुकी है, गूगल बाबा है अभी जगत गुरु। उसमें आपका सटीक शब्द डालिए एकदम हिंदी वाला, वो आपको अंग्रेजी शब्द देगा। फिर उससे आप सर्च करो रेपिट के अंदर, एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ मैं अभी। अभी कोई जगत गुरु नहीं रहा है, अभी गूगल है, सब सब है उसके पास में, पूरा खजाना है ज्ञान, सब है, कुरान है, वेद है, क्या कहते हैं, ये भी है, बाइबल है, सब है अभी उनके पास, एवरीथिंग दे हैव, राइट फ्रॉम द क्राइम थ्रिलर टू ऑल द गॉड्स, ऑल द साइंस एंड ऑल द सो कॉल्ड नॉलेज, जो भी है दुनिया में वो सब है गूगल बाबा के पास, है ना? वो कीजिए आप, ज्यादा आसान होगा। मेरी बात मानिए, बड़ा भाई समझ के मेरी बात मानिए, दैट इज व्हाट आई डू। देखो मेरी मदर टंग मराठी है, तो मैं सोचता भी मराठी में हूँ, आप समझिए। ठीक है, हम लोग के घर में मराठी बोली जाती है, हमें पढ़ा भी मराठी से, तो मैं सोचता भी मराठी में हूँ, और फिर उसको इंग्लिश के अंदर ये अभी तो खैर वो साइमल्टेनियस प्रोसेस हो गई है, बट आपको समझाता हूँ मैं, आप इस तरीके से कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो करीब करीब पे जो शब्द होते हैं ना आ जाएंगे, जैसे आउटकास्ट और सर एक सेकंड, वर्ड आता है लेफ्ट लुक आउट डाउन, लुक वगैरह, डाउन। इन सबको मिला के, और एक शब्द एक आता है जो उसके साथ हो रहा है, सब लोग उसको क्या करें, स्पेशली दो सेकंड केस और थर्ड केस के अंदर। अबैंडन्ड लिख सकते हैं। सर लुक अबैंडन डाउन और हो सकता है आउटकास्ट ना। इज सेम, आई मीन फोर सेकंड इज सेम ना बेटा। अबैंडन फर्स्ट है, फर्स्ट वाली को अबैंडन फीलिंग है, यस, बट अबैंडन से भी ज्यादा क्या है, और सर लुक डाउन की फीलिंग है इसमें, लुक डाउन। लेफ्ट आउट तो बोल दिया इन्होंने मैडम नहीं ने। सर लुक डाउन, लुक डाउन। लुक डाउन अपॉन, या बाल कृष्ण भाई, तेरे नाम में जादू है, कृष्ण भगवान का नाम है माशाल्लाह। हालांकि तब वो भगवान नहीं थे कृष्ण जी, है ना? थैंक यू। लेकिन अवतार तो थे माशाल्लाह जी। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, और वेरी गुड।
और तो और एक शब्द है, देखिए क्या बोला था बालकृष्ण आपने? लुक डाउन अपॉन लुक डाउन अपॉन लगता है, किसको लगता है लुक डाउन अपॉन? जिसको लगता है कि मेरी एक पोजीशन है। हेलो, आप किस तरीके से समझोगे अभी केस को मैं आपको बताता हूँ। डिमिनिश से ब्रो, कम ऑन विक्टस, लुक डाउन इज डिमिनिश ब्रो। ओके नाउ प्लीज डू नॉट टाइप एनीथिंग, ओके। अब प्लीज, मुझे फिर मेरा फोकस हट जाता है। शी फील्स शी हैज अ पोजीशन, द फर्स्ट लेडी was adopted by uncle, she was that princess right in the house, of course। बच्चे नहीं तो बच्चे नाजों से बड़ा क्या होगा, ठीक है। शादी भी अच्छे घर में दी, लेकिन वहां भी इसको हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा है, इधर बाप भी ध्यान नहीं दे रहा है। बहन आ गई तो इसकी जो पोजीशन थी एक वो गई, सेकंड में भी थर्ड में भी। इसको बेटी नहीं होने की वजह से ठक, बीच वाली को एजुकेटेड नहीं, और रिश्तेदार देवरानी पढ़ी लिखी, और सासू माँ रिश्तेदार होने की वजह से इसकी जो थी पोजीशन ये वो नहीं रही, इसकी कोई सुन नहीं रहा है। और ये चीज हो रही है कि उसकी सुनी जा रही है जिसकी पोजीशन है। हेलो, किसी और कोई पोजीशन वो मिल गई है, ठीक है, और अब सब इसकी सुन रहे हैं। जो खास पॉलिटिक्स में होता है, आप देख लो ना, सेम तो चीज है। कुर्सी चल जाती है, उसके इर्द गिर्द सब घूमने लगते हैं। अब ये जितने भी लोगों ने पार्टियां छोड़ी है ना, जो मान लो पहले पार्टी वालों के बच्चों को आगे वगैरह किया गया ना, तो आया था ना, अब वो इनके इर्द घूम रहे हैं, इनकी चाटुगिरी कर रहे हैं। हेलो, वैसी चीज हो रही है ना यहाँ पर भी, समझ रहे हो? तो दिस इज डिल्यूजन डिस्पाइज्ड एंड डिल्यूजन माइस रनिंग अंडर द चेयर। हेलो, आर यू गेटिंग मी? हेलो, आर यू विथ मी गाइस? Yes, sir. ना वो उसके कुर्सी के नीचे सब घूम रहे हैं ना। हेलो, बराबर ना। चेयर का मतलब क्या होता है? कुर्सी ना, एक पोजीशन। हेलो, समझ ना, चेयरमैन होता है ना, चेयर पर्सन होता है ना। जैसे पीएचएफ के अंदर आई एम द चेयरपर्सन, इंडिया के चेयरपर्सन होता है, जैसे आईसीसी चेयरपर्सन है, दैट इज अ चेयर ना, कुर्सी होती है ना। जैसे अभी डॉक्टर है भाई, ये इसकी पोजीशन बढ़ गई, जो प्रेसिडेंट होता है उसका होता है, राइट। और इसको नीचा लुक डाउन अपॉन, है ना। डिस्पाइज मतलब इसको बाजू हटा दिया है ना, लुक डाउन अपॉन से भी देख लो। रेमेडी इज लैक कैन। Yes, sir. First minute. Understood now? Yes, yes. Like, first minute, next example. Yes. Understood? Hello. Are you with me, guys? Agreed? Are you there, guys? Now, Yes, there's a sir. beautiful rubric of adoption. There's a beautiful rubric. Adoption का Lacan के अंदर there's a beautiful rubric. Okay. You understand? After some time, the symptoms appear, right? There's a direct rubric given in the report. You see, there's only two remedies, Lacan and Lactolide. Understood? Lactolide, I think I've taught last time. Again, sometimes I'll explain this rubric also, but Lactolide. But right now, try and understand this in Lacan, context of Lacan. Understood, guys? Hello, are you there with me? जी सर, जी सर। Okay, I believe we have understood, all intelligent guys today. Let's call it tonight, Mansi. ये वाला लॉजिक समझ नहीं आया है। Beta, you're not audible. person mouse I can't hear you, beta. Tell me.
You can ask the question on YouTube, better I'll answer you. Or you can type the question for a moment. We can wait for you. यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्यों नहीं ले सकते सर? मॉडिफिकेशन ले सकते हैं मनमार्क का, लेकिन देखो मॉडिफिकेशन वैसे तो you can have hills of rubric, but the thing is ज्यादा जो core होता है ना, once you hit the core, then I do not really think about the rubrics which are, peripheral rubrics. You understand? यहाँ पर spice है and loss of position उसका जो लग रहा है वो कि I had this chair, now the chair is gone to somebody else, and that's why under the chair. Okay. I don't even know. And really try the case through really solid rubrics. Lacan is there in mortification. Okay, mortification is there. She is mortified. She is dying every moment. All the three women, if you see, they're dying every minute. Of course, their mortification. But try and enter the case because mortification is a big rubric. I guess there must be some 200 odd remedies there. 79 odd remedies are there. You won't reach nowhere in that, right? Through that rubric. Right? Yes, sir. Yes. Yes. Yeah. जी sir. Try and understand the rubrics which are striking. What Dr. Hanuman has said, SSUP, na? Striking, singular, unique, and peculiar. So try and understand the case through the core as possible. Then you won't, go haywire. Otherwise, it will add more confusion to you better. जी sir. Right? हाँ, जी sir. Thank you. God bless. Okay. I'll teach Lacan next lecture. Let me prepare it. I'll make some slides teach you Lacan also in totality. But this is the core of Lacan. Try and understand. This is I have hundreds of cases of Lacan. This is the remedy we've been using since college days, okay. So it's one of my favorite remedies. Okay. Chalo, Dr. Mansi. Thank you, sir. Thank you so much for yet another inspiring and thought-provoking session. It was really insightful. You make the complex things very simple to understand. So thank you so much. Thank you all the participants. Thank you. It was a wonderful audience today. Thank you, my team PHF, and thank you everyone. Yeah. Have a good time. Thank you. Thank you. You go to the YouTube comment there and do questions on YouTube. Make videos and answer all your questions. Okay, that's a promise, inshallah. Bye. Good night. Have a happy learning, guys.